Good morning, students. As you know, in last class we have completed chapter number 8, and after the completion of chapter number 8, we have completed the 3 units of our book or of our syllabus. The first unit is of management, which consists of 16 marks. The second unit is of chapter number 4 and 5, which is of 8 marks, and the chapter number 6, 7, 8. Marketing, sales promotion and advertisement, which also consist of 8 marks. Now we are starting a new chapter, which is chapter number 9, which name is Business Law and Contract Act. So before starting this chapter, I would like to tell you that chapter 9 and 10 consist of 16 marks. That means this unit is of 16 marks. These two chapters contains 16 marks. Is it clear? So before starting the chapter, we should know about some facts or some definitions like law and contract act. As we have learned that law means the act, the customs made by the government, parliament for effective management, to maintain discipline. It is required to maintain an environment. So now we are starting the introduction of this chapter. Introduction. Okay? Introduction means to maintain an environment of economic, social, political, educational, religious, technological developments and law and order of a country, the government, society and other classes operate activities through customs, traditions, rules, bylaws which fulfill the country. सीधी सी एक बात कही कि एनवायरनमेंट में हर तरह से मेंटेन करने के लिए, चाहे वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो, सोशल एनवायरनमेंट हो, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो, एजुकेशन एनवायरनमेंट हो, रिलीजियस हो, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो, या कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात हो, तो इसके लिए गवर्नमेंट, सोसाइटी और जो भी पर्सन्स हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ को ऑपरेट करेंगे वहाँ के नॉर्म्स के हिसाब से, कस्टम्स के हिसाब से, ट्रेडिशंस के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से, जिससे कि हमारी कंट्री चले. पीसफुल अरेंजमेंट्स, इफेक्टिव मैनेजमेंट्स एंड रिसोर्सेज कैन बी क्रिएटिवली यूज्ड. और इसके लिए हम क्या करेंगे? अरेंजमेंट्स करेंगे, इफेक्टिव मैनेजमेंट करेंगे और रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे. इन ऑर्डर टू सिस्टमाइज एंड कंट्रोल दिस एफर्ट, द लॉ रेगुलेशन सिस्टम एंड अदर लॉ आर. कि अगर लोग अपने आप ये सब कुछ समझ जाते तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी. But as we can see, there are some people who do not follow the customs, who do not follow the rules, do not maintain their disciplines. That's why we need to systemize the control by way of law regulation system and other laws. In the field of business, for quick and uninterrupted business operation and regulations in the environment of e-commerce, law are needed. As we can see that like like all other areas, if we want to run the business without any interruption, we have to follow follow the code of conduct, or we have to follow the business law rules. Is it clear? Or we need some law for or to maintain discipline in the business sector. Is it clear? Now the first point of this chapter is meaning of law. That means what do we mean by law? Meaning of law. In general terms, the meaning of law is legal activity by central, state or local government in order to organize, control human behavior in the socio-economic, political sphere,
रूल्स, बायलॉज, लीगल प्रोसीजर्स एटसेट्रा क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट। एक ही लाइन में इन्होंने सब कुछ कह दिया और कहा जनरल टर्म्स में। इसका मतलब है कि एक ऐसी लीगल एक्टिविटी जिसे सेंट्रल, स्टेट या लोकल गवर्नमेंट अपने आसपास के ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल और ऑर्गेनाइज करने के लिए, एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज और लीगल प्रोसीजर बनाती है जो गवर्नमेंट, उसी को हम कहेंगे लॉ। फिर से समझेंगे, गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट अपने अपने एरिया को सिस्टमेटिक करने के लिए, ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए जो रूल्स, रेगुलेशंस बनाती है, लीगल प्रोसीजर्स बनाती है, उसी को हम कहते हैं लॉ। दीज आर ऑल्सो नोन एज एक्ट, हम इन्हें एक्ट भी कह देते हैं और इन्हें लॉ भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर, किसी पर्सन ने कहा है, लॉ मीन्स द ग्रुप ऑफ थ्योरीज, लॉ का मतलब है ग्रुप ऑफ थ्योरीज दैट आर रिकॉग्नाइज्ड एंड यूज्ड बाय द स्टेट एज मीन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस, कि वो थ्योरीज या ग्रुप ऑफ थ्योरीज जिन्हें बनाया गया है, पहचाना गया है स्टेट के थ्रू, जिससे कि हम जस्टिस मेंटेन करेंगे, जस्टिस को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, उसी को हम कहेंगे लॉ। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? बेसिकली these laws are classified like civil code, criminal procedure code, CPC, CRPC, ठीक है। लाइक दीवानी मामले सुने होंगे आपने, जो ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए मामले हैं वो हमारे CPC में आते हैं, ठीक है। सिविल प्रोसीजर कोड और मर्डर, चोरी वगैरह जो होते हैं ये हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आते हैं। इसी तरीके से होता है हमारे बिजनेस लॉ। According to Professor M.C. Shukla, business law is the branch of rule that describes the rights and obligations of the business persons, which are treated in general sense of business dealing related to business property, group of statutory rules that are systematic and effective are called business law। कि लॉ की वो ब्रांच जो कि एक बिजनेस पर्सन के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को डिफाइन करती है। ध्यान से समझेंगे कि लॉ की एक वो ब्रांच जिसमें बहुत सारे, जैसे कि सिविल हो गया, क्रिमिनल हो गया, वो भी एक ब्रांच है। उसी तरीके से लॉ की एक वो ब्रांच जो कि बताती है बिजनेस पर्सन को राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, साथ के साथ में ये भी बताती है कि बिजनेस डील करते वक्त किन बातों का ध्यान में रखना ज़रूरी है, ठीक है। उसको पूरा करते वक्त, बिजनेस डीलिंग को पूरा करते वक्त किन किन स्टैट्यूटरी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किया जाना ज़रूरी है, उसी को हम कहेंगे बिजनेस लॉ। इज इट क्लियर? बिजनेस एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए नॉर्मल रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स डिसाइड किए गए हैं, स्टैट्यूटरी प्रोसीजर जो बनाया गया है, उसी को हम क्या कहेंगे? बिजनेस लॉ। इन अ जनरल सेंस, अ बिजनेस प्रैक्टिस और अ ग्रुप ऑफ स्टैट्यूटरी रूल्स that affect the regular control arrangement is called a business law। अगर इसे सिंपल वर्ड्स में कहें तो बिजनेस से जुड़े हुए जो स्टैट्यूटरी रूल्स बने हुए जो कि रेगुलर कंट्रोल अरेंजमेंट को इफेक्ट करते हैं, उसी को हम कहेंगे बिजनेस। इज इट क्लियर? आई थिंक मीनिंग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एक सिंपल सी बात है कि लॉ क्यों बनाए जा रहे हैं? डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। क्यों कर रहे हैं हम डिसिप्लिन मेंटेन? ताकि कंट्री में सुख शांति बनी रहे, किसी के साथ चीटिंग नहीं हो, फ्रॉड नहीं हो। एज वी कैन सी दैट लाइक समटाइम्स द सेलर डिडंट फुलफिल द डू नॉट फुलफिल द गाइडलाइंस रिगार्डिंग द सेल्स। समटाइम्स सेलर डू नॉट डिस्क्लोज द ट्रूथ अबाउट द ट्रांजेक्शन। सो इन सम केसेस वी फील चीटेड, इन सम केसेस seller feel cheated. So for this requirement or to maintain discipline in business transaction, to maintain peace in business transactions, we need to make business law. Is it clear? Now the topic is scope of business law. Scope of business
स्कोप ऑफ बिजनेस लॉ क्या कहता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट दैट कम्स इन द फील्ड ऑफ बिजनेस लॉज आर एज फॉलोज। अब ध्यान से समझेंगे हम इस चीज को कि केवल ऐसा नहीं है कि हमने एक बिजनेस लॉ बना दिया, एक एक्ट बना दिया जिसका नाम है बिजनेस लॉ और वो बिजनेस एक्टिविटीज को सबको कवर कर ले। नो, पॉसिबल ही नहीं। एक्चुअल में क्या है कि देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज बहुत सारी अलग अलग तरह की है और उन बिजनेस में भी अलग अलग पार्टीज होती है। तो उन सब के लिए हमने अलग अलग सेपरेट एक्ट बना रखे हैं और बिजनेस लॉ में इन सबको शामिल किया गया है कि इन सब एक्ट का फुलफिलमेंट होना ज़रूरी है, अदरवाइज ट्रांजैक्शन को डिनाई किया जा सकता है, वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है या फिर आपको पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। इज इट क्लियर? सो पढ़ते हैं हम इन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि कौन कौन से एक्ट जो हैं या इन एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि कौन कौन से एक्ट हमें फुलफिल करने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इन एक्ट का फर्दर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है हमारे सिलेबस में, स्टिल मैं ये बताना चाहूँगा कि हर एक्ट का अपना अपना क्या क्या स्पेशल मैटर कवर किया जाएगा। तो आप पेंसिल से या किसी और जगह अपने चाहें तो मेंशन कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे दो पार्टी के बीच में, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स when one party offers to another party and the other party accepts the offer, it is called agreement। और जब इसे हम कोर्ट में लेकर जा सकते हैं तो इसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। क्या क्या प्रोविज़न होंगे, क्या क्या कंडीशन होगी, क्या क्या कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, क्या आपको राइट्स मिलेंगे कॉन्ट्रैक्ट में, ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया है जो कि हम इसी चैप्टर के अभी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। When a seller sell the goods to the consumer, then how the what should be the procedure, how the ownership will be transferred, what are the rights of seller and what are the duties of seller, what are the rights of consumer and what are the duties of consumer. So these are mentioned in the Sales of Goods Act. Is it clear? Next is Indian Partnership Act, as we discussed in the 11th class. The partnership form of organization is governed by the Partnership Act 1932. That means we have to follow the norms, we have to follow the rules of Partnership Act if we start the partnership firm. Negotiable Instrument Act. Negotiable instruments are those instruments which can be used as a money. For example, bills of exchange, for example, check. So the act which governs the rules and regulations of these types of instrument is called Negotiable Instrument Act. Arbitration and Conciliation Act 1996. As we know, there is a lengthy procedure in the court to solve the problem. That means it takes a lot of time to solve the problem in the court. So there is a act which says that two person can appoint a one person, or where two or more persons are appointed to solve the differences between two parties is called arbitrator. So these types of rules are covered under Arbitration and Conciliation Act. Next is Companies Act 2013. As we discussed in the last classes, the act which consists the rules and regulations related to formation of company and the company's procedure of form the organization is called Companies Act 2013. Those companies which work as a bank, which are covered under the Banking Companies Act 1949. Consumer Protection Act consists of definition of consumer, redressal committees, कब हम जा सकते हैं, ड्यूटीज़ क्या है, राइट्स क्या है, वो डिफाइन करता है. नेक्स्ट इज एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट. एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट मीन्स कि एक ऐसा एक्ट जो डिफाइन करता है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है उन्हें स्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उनका क्या प्रोसीजर होगा, कैसे करना है, तो वो होता है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट. इंडस्ट्रियल लॉ, इंडस्ट्री स्टार्ट करने रन करने के क्या रूल्स होंगे. इंडस्ट्रियल लॉ, लेबर का एक्सप्लॉयटेशन कब कब मान लिया जाएगा, कब नहीं माना जाएगा, कितने वर्किंग आवर्स देने होंगे,
ये होगा हमारा लेबर लॉ, जिसमें कॉम्पनसेशन भी आ जाता है। इंश्योरेंस एक्ट, इंश्योरेंस कंपनीज को बाउंड करने के लिए काम आता है। सेबी एक्ट, कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट की गवर्निंग बॉडी है जो ट्रांजेक्शन्स और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का काम करती है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन से जितने फंड्स आ रहे हैं जा रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज का जो काम हो रहा है उसे गवर्न करने का काम में है। पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट एक्ट, पेटेंट मीन्स जो न्यू इन्वेंशंस होते हैं, ट्रेडमार्क मीन्स जो हमारे बिजनेस का सिंबल है, और जो कॉपीराइट मीन्स कोई आर्टिस्टिक और ड्रामेटिक वर्क है। जैसे आपने सुना होगा मूवी की स्क्रिप्ट वगैरह नॉवल पर बेस्ड होती है तो उसके लिए राइट्स खरीदे जाते हैं। सो दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड थ्रू दिस एक्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जैसे कि साइबर क्राइम वगैरह रोकने के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए। और गुड ट्रांसपोर्टेशन एक्ट, कि सामान यहाँ से वहाँ जाएगा तो उसके ट्रांसपोर्टेशन के क्या रूल्स होंगे, कितनी बिल्टी होगी, कितने चार्जेस होंगे, कैसे होंगे, तो उसका जो एक्ट है वो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एक्ट। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी हैव स्टार्टेड द इंट्रोडक्शन, देन मीनिंग ऑफ लॉ, then meaning of business law, then we have completed scope of business law. Still, if you have got any doubt related to this topic, you can ask through WhatsApp. Thank you, students.